second place of the second group. Opening batters of Al Biladi Super Strikers taking the place. Manzoor KL and Salim Mighty. Manzoor KL, we have witnessed him yesterday, blistering batting performance. He scored 50 runs in his innings. Salim Mighty also got some big runs. He hit hat-trick sixes. He struggled in the earlier stage of the innings. After that, he did a comeback and got runs from his bat. Captain of Unified Blues, Ansap, setting up the field. He knows that it's a big match for them to become the table topper. Opening bowler of Unified Blues getting ready. And news coming from IPL. Heartbreaking news for RCB fans. Royal Challengers Bangalore is 95 for 9 in 14 overs. Losing 3 matches back to back, and today they are making low score, 95 runs. Yes, come back to this match, NIPL underway. Opening bowler Zahir on a bowling mark. Manzoor drives the ball onto the covers and gets a single. Manzoor starting off with a single, and strike rotates. That brings Salim Mighty into strike end. Salim is a powerful batsman. We have seen how well he has batted in the previous match. He hit hat-trick sixes. He is the only batter, if I'm not wrong, to get that record of 3 sixes. Unified Blues looking very smart in this blue jersey. And they know that this match is very important for them to book the table topper. Manzoor moving to the non-strikers end. Salim Mighty taking the strike end. Zaib is the man who is bowling first over. There is a request for review from the batter for a no ball, and it has been asked with the third umpire to check for that no ball, and umpire gives the call that ball is above waist level, and review is successful. No ball for Al Biladi Super Strikers. That brings Salim Mighty into strike. Zaib bowling first over. First ball was no ball. Salim having a chance to hit it freely because it's a free hit. The stamp drives the ball in a style. There is a wide gap, bounces and outside the boundary row for 4 runs, making full use of free hit and power play. There is no fielder, only 2 fielders outside the rings. Good news for Al Biladi Super Strikers. Salim started striking from the very first ball in the previous match. He struggled a bit in the first 2 overs to connect it from the bat, but now it looks like he started from the very first delivery he faced. A star cricketer, explosive batsman playing for mighty Bangalore have come to take part here in this NI for Al Biladi Super Striker. He is a regular campaigner for Al Biladi team, and we are getting to see him again here in Al Biladi Super Striker team. First delivery have been smashed for a boundary. That danger man is on a strike. Coming down the track, walking down to the middle of the pitch, unable to connect. Dot ball. Good comeback from the bowler of that no ball and boundary. Zahib, a very good experienced bowler from Unified Blues, a champion bowler. He knows how to come out of situation like this. He has come through this kind of circumstance so many times. He has faced some great batsmen in the past. Now he's having Salim Mighty against him. This time Salim drives the ball in a style. There's a wide gap that goes all the way.
Umpire signals it's a boundary. Second boundary of the over. Looks like a camp of Al Biladi super strikers are in a full josh. The way Salim is batting out there, they are clapping and cheering for all the runs Salim is getting for his team. And with the help of that boundary, total score is 10 runs. We are in the first over. Look at the ground. Families, kids, people are all around the ground here at NIPL cricket ground. Welcome to all of you. This time outside the off stump and dot ball. Zaheb is the bowler. Outside the off stump there was a bounce and Salim Mighty could not reach up to the delivery. Good going for Zaheb after that boundary. Captain Ansaf having a chat with the bowler, giving some piece of advice how to tackle a situation like this, because Salim Mighty is a powerful batsman. Salim drives the ball in the air. There is a wide gap. Ansaf behind the ball. Will he able to take it? It's difficult to take catches like this. Goes so quick. We are having a quick outfield here at Kanu cricket ground. Not easy to stop balls like that. Third boundary of the over. Salim has taken a full charge, hitting the ball all the corners of the ground. 3 boundaries have been scored so far. Imran Koteshwara, man behind the stump, walking up to the bowler, having a chat with him, giving him some piece of advice. With the help of that boundary, total score is moving to 14 runs. 4 deliveries have been bowled. Zaheb. Salim Mighty this time surprise bounce to him, pulled it towards square of the wicket and gets a single. Left-right combination. Very good opening pair for Al Biladi super strikers. They have put in left-handed and right-handed batsmen to open the innings. At the end of the first over, total runs on the board for Al Biladi super strikers is 15 runs. Good start. Unified Blues, last time they played here in the same venue, they reached to the finals of CASA Super Cup and they lost against Kask in that final. Ansaf definitely will be remembering that defeat, and he want to rewrite the history probably by taking home this NIPL. He knows the pain of losing that final last year in the Kask tournament. He's come with some very good players in the side. Now Ansaf is bringing Ashfaq Rabada to ball. Match winner of the previous match, hero of the previous match, is brought into attack. Is jogging and getting ready to ball the first delivery of the second over. Power play still in action. Fielder standing deep in the boundary rope. Only 2 of them can be in the boundary area. Rest of them are inside the 30-yard circle. Ashfaq, Salim Mighty and this time outside the off stump. Very good start from Ashfaq. Salim staring at the umpire, but umpire says that's a legal delivery within the reachable area of the batsman. Good thinking from Ashfaq. And now the bowler second time in his over. This time drives the ball in a style. There is a fielder. Will be an easy one to take. Yes, it is. Innings of Salim Mighty comes to an end. What a good catch from him. Salim got some runs from his bat in the first over. Wanted to go again over the covers, but could not connect it from the middle of the bat. So that great cricketer is on his way back to dugout. First wicket is gone for Al Biladi super strikers. And now look at the camp of Unified Blues. They have joined together in a huddle to celebrate the fall of the wicket of Al Biladi super striker. Daniel is the man in action, taking that good catch. Opening batter of Unified Blues. Daniel had a very good day in the previous match, and now he's in action there, taking a very good catch.
After dismissal of the Daniel, the new man holding a bat and taking all responsibility to replace Salim Mighty is another star cricketer. Rajat Munde is joining with Manzoor KL. Both the ISPL superstar players are at the center of the ground. Rajat Munde, the best batsman of recently held ISPL tournament back home. Playing for Maji Mumbai today here at Al Biladi Super Strikers. Left-handed batsman. We'll see how he's going to bat out there in the middle. Ashfaq, second time in his over. Rajat in front of him. Rajat drives the ball onto the covers. He's off the mark with that single. He opened his innings. That brings Manzoor into attack to face the next delivery. Manzoor had a very good first match. We have seen how well he batted. He got the first half century of the tournament. Ashfaq Rabada able to break the opening partnership between Salim Mighty and Manzoor. A bowler jogging down. Ashfaq. This time flighted one outside the off stump. Very good going for Ashfaq. Ashfaq has got good pace in his bowling. That's the reason why he has got man of the match in the previous match. Most trusted bowler of Ansaf. He knows the capacity of Rabada. After that dot ball, he's going back again against Manzoor. Wanted to play with the bounce. He deceived the batsman bowling outside the off stump. He making batsmen to play towards the cover. He kept, you look at the field placing, 1, 2, 3, 4 fielders in the offside, and there's a fielder in slip and gully in place. Very good captaincy, I can tell you, from Ansaf, and good strategy from the bowler. Ball outside the off stump, and as you all know, if batsmen shuffle, the rule of the wide, the second line will be called as a wide ball by default. The first wide line will be taken off because the batsman is shuffling. That's the common rule in cricket, we all know. And in fact, players also know about this. They will keep this in mind. Some of the batsmen doesn't shuffle because if they shuffle, the rule of the wide will be second line. It's not the first line. And there is a problem of side screen. I believe somebody is obstructing the view of the batsman. And now all set. Rabada in action now. Manzoor looking for a reverse, not able to connect it. What an exceptional piece of bowling from Rabada. The previous over was a bit expensive, but this man is covering up things. He is bowling brilliantly. Back-to-back dot balls, and in this over, bowler have conceded just 1 run. What a great bowling, and picked up a wicket as well. In 6 overs match, conceding 1 run is nothing short of brilliance. Very good piece of bowling, and look at the camp there. Unified Blues are in full josh. They have a star cricketer, ISPL players in the center of the ground. When these two great players are there, Manzoor and Rajat Munde, the bowler of Unified Blues, have given away just 1 run. What a great bowling. And look at the camp. They have formed the huddle, leading from the front their captain Ansaf, making all the game plan and strategy. They know that they want to win this match and become a table topper. On the other side, Al Biladi Super Strikers are not going to make things easy for Unified Blues. They have some great players in their side who have come all the way from India to take part in this tournament. They have players like Rajat Munde, Manzoor, Vicky Bor, Prathamesh, Salman, Hasnain. What a great camp. This is a very good competition between these two teams. We'll definitely get to see some quality cricket from this star-stud player playing in this NIPL 2025, coming live from Kanu Cricket Ground under the buzzing brilliance of floodlight. After the completion of 2 overs,
Now the man in action for Unified Blues is Numan. Numan is a regular customer of Unified Blues. He has been a match-winning player for Unified. And for the attention of the captain, you will have to finish allotted 6 overs in 30 minutes. If you are not finishing this 6 overs, you will be penalized. You will have to bring one fielder inside the rings. We have been applying this rule since yesterday. So this is just for your attention. And now Rajat Munde is at the strike and Manzoor is on the non-strikers, and busy man Ansaf moving all around the ground. He's going on to the offside. He was on the onside, and the bowler on a bowling mark. Numan, first time in his over. This time drives the ball in a style. There is a fielder. Will he able to stop it? Oh, gone between his hands. That should have been taken in a tournament like this. You have to put your full effort. But unfortunate for him, that has gone between his hands. And big 6 for Rajat Munde. He could have got that big batsman in his kitty. Quite unfortunate. Not an easy one to take, but it was so close. Rajat Munde started to fire. Bowler on a bowling mark. This time goes reverse. He wanted to play all the corners of the ground. Earlier we have seen he hitting a 6 onto the mid-wicket area. Now wanted to turn his bat and play to the offside onto the deep third man area. Numan, third time in his over. Rajat drives the ball straight on the ground. No need to run for that. Into the gallery. 6 runs. Look at that stroke. This is the reason why Al Biladi Super Strikers have brought him here to play. He is the sensational cricketer, class cricketer, all the way from India. This year's ISPL Best Batsman Award winner here in this Kanu cricket ground. What a shot he has played, just like a rocket sail fielder standing there on the long off area. 2 sixes have come in this over. Pressure for the bowler. 4 deliveries. He has conceded 2-6. Numan down. Rajat is at the strike and this time drives the ball. It's raining sixes. Firework has begun here at Kanu cricket ground. Back-to-back sixes from this great cricketer. What a shot. He's doing the job for the captain. Al Biladi Super Strikers camp is pretty happy, and the spectators over here are really enjoying this entertaining piece of batting from this great cricketer Rajat Munde, entertaining all of us with this great shot. He's batting on 34 in this year's IPL. In this year's ISPL, Rajat Munde has scored 284 runs with a strike rate of 42.60. His highest score was 58. He's here, played on the ground. Very good piece of bowling. Good comeback. Tried a yorker. Batsman is even smarter to pull it back all along the carpet. And with the help of that single, total score on the board is 39. You are all watching NIPL 2025 live from Kanu cricket ground. Warm welcome to all the spectators. I have my co-commentators Riaz Mangalore, Safwan Bajpayee, Ramiz Manjeshwar as the umpire. We are having umpire panel head Shamroz, Arun De Silva, Asif, and on the scoring we have Afnan Karkala and Arshad Damam. Thank you all of you. And on the live coverage we have team from India, M9 Sports. by Al Biladi Super Strikers. Ashfaq Rabada दूर गुजरात के खिलाड़ी है. पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड. Oh, what a shot! खूबसूरत हिट. रजत मुंडे ने खूबसूरत स्ट्रोक लगाया. सीधा स्ट्रोक और ये चौका. इस चौके के साथ साथ टीम के वेट, I'll have to wait. हम लेंगे तो इमरान कोटेश्वर.
कवर्स में खड़े हैं टीम के कप्तान, अंतरराष्ट्रीय कप्तान अंसाफ। लॉन्ग ऑन में डैनियल दूर कतार से आए हैं, एक स्टाइलिश बैट्समैन है और इसी के साथ साथ अपनी दूसरी गेंद को लेकर तैयार। खूबसूरत गेंद लॉफ्ट किया, डैनियल गेंद के पीछे लपक लिया गया, रजत मुंडे को। खतरनाक बल्लेबाज की पारी समाप्त हो रही है। सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश थी, अच्छी सी एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए, ऊंचाई नहीं दिया। गेंद बल्ले के बल्ले के नीचे गेंद को, माफ कीजिएगा, गेंद के नीचे बल्ले को पूरी तरह से ले नहीं जा पाए। काफी यॉर्कर की गेंद थी, फ्लैट बैटेड स्ट्रोक और इसी के साथ साथ ये विकेट। रजत मुंडे 44 रनों पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। अगर व्यक्तिगत योगदान की बात की जाए तो 2 सिक्सर 2 चौके लग चुके हैं रजत के बल्ले से। अट्ठाईस रनों का पारी खेली है रजत मुंडे ने, 9 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके 3 छक्के। दूसरी तरफ सलीम जो कि 2 चौके मारकर आउट हुए हैं। मंसूर अभी भी सही सलामत क्रीज पे मौजूद है, हालांकि 4 गेंदों का सामना किया है। रनों की बात की जाए तो सिर्फ 1 रन मंसूर के बल्ले से है। हाल ही में हुए आईएसपीएल में एक अग्र क्रमांक के ऑलराउंडर थे मंसूर, केरला से बिलोंग करते हैं, इज अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर। हालांकि अंसाफ के ऊपर नजर थमाइएगा, इज गेटिंग एक्टिव इन द फील्ड। अंतरराष्ट्रीय कप्तान है, काफी सारे नामचीन बड़े टूर्नामेंट्स को अपने पक्ष में करने का इनका अनुभव है। हालांकि यहाँ पे अशफाक को समझाते हुए कि किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए। इमरान विकेटों के पीछे, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट मौजूद है, डीप लॉन्ग ऑन पे डैनियल कवर्स पे खड़े हैं और एक खिलाड़ी बाउंड्री राइडर के रूप में स्वीपर पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। 30 गज के दायरे के अंदर फाइन लेग और थर्ड बैट दोनों 30 गज के दायरे के अंदर। हालांकि एक स्क्वायर लेग की खिलाड़ी थोड़ी सी फाइन खड़े हैं वहां पे लेग एम्पायर के बाएं तरफ मिड विकेट पे टीम के कप्तान अशफाक अपनी दूसरी गेंद। खूबसूरत गेंद थी, कलात्मक शैली से गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है, एक आसानी से दूसरी रन को सोचती अपने आप को रोका और ये विकेट। मंसूर काफी नाखुश है, हालांकि 4 गेंदों का सामना करके सिर्फ 1 रन बल्ले से विकेट गिरा है मंसूर का। फील्डर का नाम बताइएगा प्लीज। अ वंडरफुल थ्रो, हालांकि अजहर ने जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा किया, कीपर ने गेंद को गैदर किया, विकेटों पे निशाना ताना, निशाना लगा और इसी के साथ साथ मंसूर काफी धीरे धीरे पेविलियन के तरफ जाते हुए ये विकेट गिरता हुआ। निहाल इंटरनेशनल प्रीमियर लीग एक अद्भुत क्रिकेट श्रृंखला का जो कि आयोजन हुआ है। नए बल्लेबाज मैदान पे उतर रहे मेरे ख्याल से प्रथमेश मात्रे और एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है आज इस मैदान में इनको। एंड आई बिलीव इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल इन सऊदी अरेबिया। पहली बार सऊदी अरेबिया में क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं। हाल ही की भारत के अच्छे लेफ्ट हैंडर उसकी नाम ली जाए, इफ यू टॉक अबाउट गुड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ही इज वन अमंग्स देम। एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। एक लेफ्टी का विकेट गिर रहा है तो दूसरे लेफ्टी अंदर आ रहे हैं, यानी कि सुपर स्ट्राइकर्स, अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर्स के साथ क्रिकेट के महारथियों का संगम है जिस प्रकार से टीम उतारा है मैदान पे। और इसी बीच फिर से एक बार गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। Okay, we can continue the match. अशफाक फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार, सामना करने के लिए प्रथमेश कलात्मक शैली से खेला गेंद को। Oh, what a shot! This is a classical stroke from a left-handed batsman. Left-handed elegance. कलात्मक शैली से स्ट्रोक को खेला, कलाइयों का इस्तेमाल, सीधे एल्बो के साथ खेला गया स्ट्रोक, मेरे ख्याल से पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में से निकली। What a shot! ब्यूटीफुल शॉट। लेट मी टेल यू, सिक्सर्स छक्के लगते रहते हैं मगर इस प्रकार की स्ट्रोक दर्शकों का मन बहला जाता है और इसी प्रकार की स्ट्रोक यहाँ पे खेला है प्रथमेश मात्रे। पहली गेंद और अपनी कला का प्रदर्शन देते हुए, अपने टैलेंट का प्रदर्शन देते हुए कलात्मक शैली की स्ट्रोक, चौका। इट वॉज अ रियली नाइस स्ट्रोक फ्रॉम दिस एलिगेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अशफाक वैसे एक बार तैयार,
फिर से एक बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद है नुमान नोमी, काफी तेजी के साथ गेंद की तरफ भागे और सिर्फ एक रन पे रोके रखा दोनों बल्लेबाजों को। मेरे ख्याल से चौथी ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, 50 रन पूरे हो चुके हैं, 50 ऑन द बोर्ड। इस बीच गेंद, what a hit! This is a six, this is classic विवेक मोहन। हाल ही में हुए खास का सिल्वर जुबली कप में मेरे ख्याल से फास्टैग के विरुद्ध मध्यरात्रि का समय लेजर गुरु बॉल, बड़ा ग्राउंड, ये ग्राउंड में बाउंड्री लाइन्स काफी बड़े थे, मैच पूरा एक तरफा हो चुका था। हालांकि विवेक मोहन ने लास्ट ओवर में आके 2-3 चौके और छक्के जिस प्रकार से लगाए, पूरे मैच का नक्शा बदल दिया था इस बल्लेबाज ने। और उसी प्रकार की स्ट्रोक 4 ओवर की समाप्ति, 56 रन टीम के खाते में, यानी कि यहां से मैच को जीतने के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 रन के हिसाब से रन धारण कर रहा है। इसी प्रकार से जाएंगे तो 84 यानी कि 80 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। एंड व्हाट आई बिलीव इफ दे स्कोर समवेयर अराउंड 80 to 85 रन्स, इट्स अ फाइटिंग टोटल। 80 से 85 रन संघर्षपूर्ण टोटल होगा। अगर 90 से ऊपर रन धारण होगा तो निश्चित रूप से विजय पूर्वक टोटल माना जाएगा। एम्पायर के रूप में अरुण डिसिल्वा और उनके साथी कुछ बताते हुए कि जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाइए। हमारे साथ मुख्य अंपायर के रूप में शमरोज बजपे, साथ में को कमेंटेटर्स के रूप में मंसूर मंजेश्वर, जो कि एक सीनियर मोस्ट कमेंटेटर है, 15 से 20 साल मेरे ख्याल से आई हैव लिसन्ड हिम डूइंग कमेंट्री, एक अद्भुत इंग्लिश कमेंटेटर जमीर मंजेश्वर, मेरे दोस्त, सऊदी में सबसे ज़्यादा कमेंट्री अगर मैंने किया है तो उनके साथ, और उनके साथ साथ मंसूर, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस टू एवर लिसन जिस प्रकार की कमेंट्री होती है, रियाज मैंगलोर। इज टोनी ग्रेग इज अ जेन्युइन कॉपी ऑफ टोनी ग्रेग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। जबरदस्त कमेंटेटर। और फिर से एक बार गेंदबाजी में बदलावन, डैनियल, दिस गाय इज अ चैंपियन प्लेयर, होनहार खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से एक अद्भुत अग्र क्रमांक के ऑलराउंडर, वेरी यंग प्लेयर। पहली गेंद लेफ्ट आर्म गेंद थी, ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन की दिशा में, नुमान गेंद के पीछे, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, गोली की तरह। व्हाट अ स्ट्रोक! बैट्समैन आर गेटिंग फुल वैल्यू, पूरा वैल्यू मिल रहा है बल्लेबाजों को जिस प्रकार से स्ट्रोक के खेल रहे हैं। ग्राउंड स्ट्रोक्स अबूबन चौके की तरफ बढ़ते हैं और इस चौके के साथ 4 रनों का इजाफा टीम के खाते में बनता हुआ, इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर 60 ऑन द बोर्ड। लॉन्ग ऑन पे अशफाक रबाड़ा थोड़ी सी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, हालांकि यहाँ पे 80 के करीब भी रन हो गया तो एक सिर्फ, ओह व्हाट अ बॉल और व्हाट अ शॉट, दिस इज प्रथमेश मात्रे, यू ब्यूटी। कलात्मक शैली के बल्लेबाज है प्रथमेश मात्रे, जैसे जैसे ऊपर गेंद गिरता है उसी प्रकार के स्ट्रोक को खेलते हैं, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकालते हैं और इसी के साथ साथ 6 रनों का इजाफा टीम के खाते में, 66। 4 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बटोरे इस बल्लेबाज ने। अगर अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो मंसूर 4 गेंदों का सामना किया है, 1 रन, सलीम 8 गेंदे 13 रन 3 चौके, रजत मुंडे 9 गेंदों का सामना किया 28 रन। मैच की तरफ रुख करते हैं फिर एक बार। Oh, what a ball! This is Daniel for you. It's a very beautiful comeback. Across the line, शवलों के स्ट्रोक को खेलने की कोशिश थी, गेंद की गति में काफी अच्छी बदलाव, तेज गेंद फेंका था। मेरे ख्याल से पिछले गेंद और इस गेंद को कंपेयर करें तो 10 से 15 किलोमीटर का फासला हो सकता है। पिछले 2 गेंदें काफी स्लो फेंकी थी, हालांकि यहाँ पे तेज गेंद विकेटों के जड़ में और मिडल स्टंप उखाड़ दिया प्रथमेश मात्रे का। प्रथमेश मात्रे धीरे धीरे से पवेलियन पे वापस जा रहे हैं, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। आई बिलीव वी हैव स्कोर्ड सम 9 रन्स, 15 from 5 balls what he has faced, 2 चौके और 1 छक्का, मगर वो पहला चौका जो इस बल्लेबाज के बल्ले से लगा काफी देर तक लोगों को याद रहेगा। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, वो भी पॉइंटर कवर्स के बीच में। नए बल्लेबाज लोकल बॉय मुनीर का आगमन होता हुआ, स्फोटक बल्लेबाज है मुनीर, अद्भुत बल्लेबाज है। अबूबन कास्ट के लिए क्रिकेट खेला करते थे, हालांकि आज के दिन सुपर स्ट्राइकर्स के लिए मैदान पे उतरते हुए। इस बीच रन की बात की जाए 66 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स,
समालोचना, चिंता, चर्चा चलती हुई मैदान के बीचों बीच की किस प्रकार से यहाँ पे रन पे रोक लगनी चाहिए। अंसाफ के पास अनुभव है, हालांकि अपने गेंदबाजों को बताते हुए कि क्या किस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी इन दोनों बल्लेबाज को रोकने के लिए। 8 गेंदें शेष बाकी है। अगर 8 गेंदों में 15 से 16 रन भी आते हैं तो 80 के करीब रनदारन हो जाएगा और लेट मी टेल यू 80 to 85 विल बी अ वेरी गुड स्कोर। माफ कीजिएगा, 9 गेंदें बाकी है। It's always fun to watch Munir bat. Ansaf is taking all his time to set the field and let us see what will be the outcome. Anyways, field placement की बात, स्क्वायर लेग अंदर आ रहा है, फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर, मिड विकेट 30 गज के दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ, स्वीपर कवर और पॉइंट बाउंड्री पे खिलाड़ी मौजूद। खूबसूरत गेंद, उतरी अच्छी स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में। सिकंदर भट्टी जब तक गेंद को उठाते चोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज, और एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आज के दिन यूनिफाइड्स में। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट। फिर एक बार गेंद को लेकर डैनियल तैयार, सामना करने के लिए विवेक मोहन। खूबसूरत गेंद, उतनी अच्छी शॉट। दिस गाय इज अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑन द ऑफ साइड। इस बल्लेबाज की कला जो है सीधे बल्ले से या आड़े बल्ले से ऑफ साइड में खेलना निश्चित रूप से तारीफ है लायक। नॉर्मली इफ यू आस्क मी, लेट मी टेल यू, ही विल जनरेट द पावर व्हाट अ बैट्समैन विल जनरेट टुवर्ड्स द मिड विकेट इन द स्क्वायर लेग रीजन when he is playing towards the offside. That is the talent of this batsman. And they say he works for Kerala Police. Vivek Mohan, champion all-rounder. फिर एक बार गेंद को लेकर तैयार डैनियल, विवेक मोहन के लिए। खूबसूरत गेंद, बल्ले के अंदरूनी सिरे पे गेंद लगी, विकेटों की तरफ जा रही थी, कवर किया गेंद को, डॉट बॉल। एक अच्छी गेंद ओवर को समाप्त करने के लिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन जो कि बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। इस ओवर में 17 रन खर्च किए हैं डैनियल ने। लेका जोका की बात की जाए, फिर से एक बार समझा दूं, बल्लेबाजी पे मंसूर 4 गेंदों का सामना किया है, 1 रन। सलीम 13 रन बनाया, 8 गेंदों में 3 चौका लग चुका है उनके बल्ले से। आउट होकर पवेलियन वापस। उसके उपरांत 9 गेंदों का सामना करते हुए रजत मुंडे ने एक जबरदस्त अटैकिंग पारी खेली थी, 3 छक्के 2 चौके लगे थे उनके बल्ले से। विवेक मोहन नाबाद खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के जड़े हैं 13 रन पर। प्रथमेश मात्रे 5 गेंद 15 रन, हालांकि 2 चौका और 1 छक्का। उसके उपरांत मुनीर आतिश छोर बदला, 1 गेंदों का सामना किया, अभी फिर से स्ट्राइक में रहेंगे। गेंदबाजी की अगर बात की जाए, जाइब ने पहला ओवर फेंका, 15 रन दिए बिना कोई विकेट लिए। अशफाक रबाड़ा 2 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन, 2 विकेट। कुछ हद तक नबी तुली गेंदबाजी, 2 विकेटें लेने में सक्षम थे। उसके उपरांत नुमान काफी महंगे साबित हुए, मेरे ख्याल से यूनिफाइड के सबसे काबिल ऑलराउंडर। 1 ओवर में 23 रन उन्होंने खर्च किया। डैनियल 1 ओवर फेंका, 17 रन, 1 विकेट पे। नए गेंदबाज बॉलर ने ब्लिश और रुजैक, श्रीलंका मूल के खिलाड़ी, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है मोज़ेक, एक अद्भुत फिरकी देने वाले बल्लेबाज। इस बीच गेंद को लेकर तैयार, अक्रॉस द लाइन स्टफलो के स्ट्रोक को खेला, फील्डर मौजूद, बॉल बाउंड्री की बाहर, बॉलर्स बैक पास ड्राइव। हालांकि आड़े आके गेंद को स्ट्रोक को खेला, मेरे ख्याल से बल्ले पे पूरी तरीके से लगी नहीं, तेजी के साथ बॉल काफी तेज भागता है, 10x का पिंक बॉल है, निश्चित रूप से गेंदबाजों के लिए परेशानी का विषय बन चुकी है गेंद। और उस प्रकार से रन्स भी हो रहे हैं, 115 रन, 116 रन हुए 2-3 मैचेस में। हालांकि रन्स आना कभी भी दर्शकों का मन बहलाता है, गेंदबाजों के लिए काफी कभी भी कठिनाइयों का विषय। इस बीच फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार, ये गेंद स्ट्रोक को खेला, दिस इज मुनीर फॉर यू, सबसे लंबा छक्का। और जिस प्रकार से सिकंदर भट्टी गेंद को जाते हुए देख रहे हैं, इवन ही हैज एंजॉयड दिस स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक फ्रॉम मुनीर, ही इज अ चैंपियन बैट्समैन, लेट मी टेल यू, इफ यू पिच इट अप टू हिम, ही विल हिट यू आउट ऑफ द ग्राउंड 8 out of 10 times.
Shamroz Bajpayee is just telling me this is the biggest six and it has traveled almost 97 meters. On the right hand side is my good friend Ashwad of Tadambal is telling फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार रुजैक इस बीच ओह खूबसूरत गेंद बल्ले का बार इजीरा बॉल बाउंड्री लाइन की दिशा में रोकना मुश्किल हो सकता है और रोकना मुश्किल हो जाएगा बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर इट्स अ बाउंड्री जिस प्रकार की रनदारन की आवश्यकता थी उस प्रकार की रनदारन हो रही है आई बिलीव इट इज 87 on the board and let me tell you this is a very good total for the kind of bowling what they have to take nothing away from one or two good batsmen who I believe are capable of changing whatever the target is. On one side is a champion cricketer like Imran Koteshwar. We will all enjoy the way he will bat in this ground. You have Daniel, you have Ashfaq Rabada, Sikandar Bhatti, Noman Nomi. It was going to be a very good match. Anyways, फिर से एक बार गेंद खूबसूरत गेंद थी इसी प्रकार की गेंद की जरूरत थी मेरे ख्याल से They're asking for the review. No wide given by the umpire. Arun De Silva shows a square box, signals a square box which says the decision has been reviewed by the batsman. It's a batsman review. And let me tell you, to the notice of all the batsmen and the team players and the captains, you all know the rule. Still repeating it. If the batsman shuffles, the wide popping crease will be the last one in the pitch. You have 3 lines towards your offhand side, which means the dead last line will be the line or the guideline for the umpires to decide the wide. And if you ask me what is shuffle, usually batsmen, it's umpire's perception, but still what I feel is if a batsman's back foot moves and the review is successful, it's a white ball. It's a white ball, says the third umpire, Shamroz here. The decision has been revoked. The review remains with the team, with the batting team. Ansaf speaking something to Arun De Silva just to confirm that where it was. Anyways, once again, this is the bowler getting ready. Ruzaik to Munir. What a ball and what a hit. It's a one-handed six. एक हाथ से छक्का लगाया. What a shot. This is Munir. खूबसूरत बल्लेबाजी और जहां तक रनों का सवाल है 94 on the board. 21 रन बन चुके हैं इस ओवर में. रुज़ैक की गेंदबाजी को धराशायी किया है यहां पे मुनीर ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है. 4 गेंदों में मेरे ख्याल से 2 चौके और 2 छक्के लगे, यानी कि काफी महंगे साबित हो रहे हैं. और मेरे साथ मेरे डिजिटल स्कोरर अफनान बता रहे हैं कि काफी महंगे साबित हो रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट ही इज गिविंग द इनपुट. और इस बीच फिर से एक बार ये गेंद, फिर से एक बार ये खूबसूरत हिट, फिर से एक बार ये बाउंड्री लाइन से बाहर, ये चौका. एक टप्पे पे बॉल गोली की तरह सीमा रेखा से बाहर. रुज़ैक महंगे साबित हो रहे हैं. एंड आई बिलीव इट्स 98 ऑन द बोर्ड. क्या इस गेंदों में 2 रन आएंगे और तीसरा 100 रन पूरा हो सकता है इस टूर्नामेंट में. 98 ऑन द बोर्ड. रुज़ैक आखिरी बार अपने ओवर में खूबसूरत गेंद उतरी है जी. स्ट्रोक पॉइंट की दिशा पे जा रही है. बॉल निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के करीब से गुजरेगी और बाउंड्री लाइन से बाहर भी जाएगी. इसी के साथ साथ 102 रन 103 रनों का टारगेट निश्चित रूप से एक मनोस्थिति वाला स्कोर है. इट्स साइकोलॉजिकल स्कोर व्हेन यू get past 3 figures and you go into 100, chasing 100 and 203. I believe somewhere around 17 runs per over to win this match will not be easy, but it's not impossible, only for the reason saying that one man who could put any bowler in this world, am I right, tennis bowler under pressure, none other than the champion from Qatar, Imran Koteshwar. Let's wait and watch. We'll be having a short break with some music here until we start the second innings.
Joby, if you are here, to please come to the mic point. There's an announcement here. Al-Labir Hospital is giving a free medical checkup. If anybody wants to have a general checkup regarding your body, pressure, sugar, you can please go and check your pressure and sugar level there. Thank you very much. Hello, mic check. Captain of Pirates Abu Dhabi and Kano Super Strikers, please report to the commentator stage immediately. Kano Super Strikers और Pirates Abu Dhabi का दोनों कप्तान जल्दी से जल्दी माइक पॉइंट पर आ जाइए. कानो सुपर स्ट्राइकर्स और पायरेट्स अबू धाबी, इन दोनों टीम के कप्तान जल्दी से जल्दी माइक पॉइंट पर आना चाहिए. अभी इस मैच के बाद नॉकआउट स्टेज शुरू होने वाला है, क्वार्टर फाइनल मैच.
Hello, mic check. Mr. Tahir of NIPL, our tournament convener. Mr. Tahir, please come to the commentator stage. Tahir. Mr. Tahir. विराम के बाद 103 रनों का पीछा करते हुए इनिंग्स का शुरुआत हो चुका है। डैनियल आर्चर और इमरान कोटेश्वर स्ट्राइक पे। जहां तक मैच की बात की जाए 103 रनों का पीछा करना है। स्ट्राइक गेंदबाजी पे मुंबई के भारतीय गेंदबाज विकी बॉयर, स्ट्राइक पे तमिलनाडु मूल के डैनियल आर्चर। ओ व्हाट अ बॉल! इस बीच गति परिवर्तित गेंद थी, तेज एक्शन के साथ स्लोवर गेंद फेंका। लेट मी टेल यू, अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, गेंदबाज तो एक अद्भुत गेंदबाज है, काफी नामचीन गेंदबाज है मेरे ख्याल से। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स राइट नाउ इन एमआरआई टेनिस क्रिकेट, विकी बॉयर। बल्लेबाजी पे यंग प्रतिभागित खिलाड़ी, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। डैनियल आर्चर इज ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कतर। और नॉन स्ट्राइक पे एमआरआई क्रिकेट के एक अद्भुत बल्लेबाज, सॉफ्ट टेनिस के साथ क्रिकेटिंग का शुरुआत किया इमरान कोटेश्वर। मैच की नक्शा बदलने की क्षमता रखता है वो बल्लेबाज। इस बीच गेंद फिर से एक बार लॉफ्टेड स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गेंद गई, काफी खराब थ्रो थी। अगर विकेटों पे नहीं लगती यहाँ पे, मेरे ख्याल से पिच पे रख के गेंद रुकी, नहीं तो खतरा बच सकता था। 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 5 रन बने हैं। 17 रन प्रति ओवर बनाना है इस मैच को जीतने के लिए टीम यूनिफाइड ब्लूज के लिए, और एक अच्छी शुरुआत की सख्त जरूरत अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाजी की टीम। जहां तक मैच की सवाल है, पलटा अभी बारी है अलबिलादी सुपर स्ट्राइकर्स का, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी किया है। सलमान कोडी के नेतृत्व में मैदान पे उतरी है आज के दिन अलबिलादी सुपर स्ट्राइकर्स। इस बीच फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार, ये गेंद और रिवर्स, और खूबसूरत रिवर्स भी था। हालांकि उतनी अच्छी एंटीसिपेशन मेरे ख्याल से थर्ड मैन पे जो खिलाड़ी खड़े थे 30 गज के दायरे के अंदर, माफ कीजिएगा, पॉइंट पे थे वो खिलाड़ी, दाएं की तरफ भागे, गेंद को रोका। जहां तक रनों का सवाल है, बल्लेबाज को नहीं मिलेगा डॉट बॉल। फिर से एक बार गेंद को लेकर विकी तैयार, 5वीं गेंद। फिर से एक बार रिवर्स खेलना चाहते थे, अपील करने की कोशिश थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में लेग बिफोर द विकेट आउट नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण मेरे ख्याल से बच रहे हैं यहाँ पे इमरान कोटेश्वर। दूसरी और रिवर्स का अटेम्प्ट, रिवर्स के स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट तो नहीं कहूंगा, रिवर्स के बादशाह है इमरान कोटेश्वर। उनका गो टू शॉट है, किसी भी गेंदबाज को किसी भी वक्त रिवर्स पाने में झुकते नहीं है उस प्रकार के बल्लेबाज। हालांकि यहाँ पे 2 अटेम्प्ट सफलताएं नहीं दी रही है। इस बीच ओवर की आखिरी गेंद विकी, ओ खूबसूरत गेंद, स्टंप उखाड़ दिया है यहाँ पे। जिस प्रकार की गेंद आई, अंदरूनी सिरा विकेटों पे टकराई, और इसी के साथ साथ डेंजर मैन गोज। इमरान कोटेश्वर की पारी समाप्त। 3 गेंदों का सामना करने के उपरांत 0 यानी कि सिर्फ 0 के संपादन पे आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। Thank you, Safwan. The league stage is wrapping up, and 8 top teams are all set to move into the knockout stage, that is quarterfinals. We have got 4 explosive quarterfinals lined up. It's all about High Hinton's battle to book the place in the semi-finals of this tournament. Get ready, folks, for the electrifying cricket action where the champions are made. Hard luck to the team, those have lost and gone home. Now we are left with 8 teams which will be battling in quarterfinal 1, quarterfinal 2, 3 and 4. Join with me, captain of Kano Super Strikers Hisham Sheikh, captain of Pirates Abu Dhabi Mr. Janu, and as a guest of honor for the toss we have tournament chairman Mr. Najim Bashir. Welcome to you, all of you. Let's have the toss for the first quarterfinal match. We wish the team good luck. He will spin and Hisham Sheikh will call. Brown is the call, and the toss
goes in favor of Pirates Abu Dhabi. We have captain here. You had a two great match. We have seen explosive batting. So what is your decision in this quarter final? You are going to bat or ball first? You are going to bat first. We're going to bowl first. You have become like Rohit Sharma. You have forgot what to give the decision. No problem. Sometimes it happens in a pressure situation. So you are going to ball first, and we wish you good luck. You guys have really entertained all of you. We are very happy to have team from Abu Dhabi here in Saudi Arabia. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. And now we have Isham Sheikh. Ishaq, you have lost the toss. In case if you had on the toss, what you would have chosen? No, we would have bat first. I think it's a good toss to lose. The boys are bowling well. I think we're just lacking the experience to bowl in the death. But I think cricket is a funny game, so we'll try another luck. They're a good team, so we are also gonna try our best. Isham, we know you have traveled to so many places like Qatar, Malaysia, Kuwait to play cricket. Today you are witnessing such a great cricket here at Kanu Ground. What is your overall experience playing a tournament organized by NIPL? No, I think excellent job by Sir Najam Bhai, and I think beautiful how they have decorated our ground today. Normally it's very well maintained by us, but I think the way they have made the ground for this event of this stature, getting 2-3 countries aboard and getting all of us to play under one roof, it's something that will take cricket, I think, to a next level. And I think slowly and steadily we'll go for the next level also by taking hardball cricket also, maybe Najam Bhai in the future, because that is the future. And good luck to all teams, I believe. Thank you, Mr. Isham. Happy to know your feedback, and we wish both the team good luck. You are heading for the first quarter final. Winner will come back tomorrow to play the semi-final match. Over to our commentator Safwan Bajpayee. धन्यवाद मंजूर मंजेश्वर। इस मैच के उपरांत जो कि मैच खेला जाएगा, एक तरफ दूर अबू धाबी से आई हुई टीम पायरेट्स अबू धाबी और उनके सामने होंगे होम ग्राउंड पे कानू क्रिकेट क्लब। कानू क्रिकेट क्लब का ये मैदान मेरे ख्याल से ईस्टर्न प्रोविंस में क्रिकेट मैदानों की बात की जाए तो एक अद्भुत क्रिकेट मैदान है। इफ इट्स MRI टेनिस के मेले लग सकते हैं यहाँ पे। इट कैन बी एन फेस्ट एज वेल द वे दिस ग्राउंड इज, देयर इज गुड स्पेस टू डू एवरीथिंग इन दिस ग्राउंड। मैच की तरफ रुक करते हैं। विवेक मोहन काफी बार अपने रनअप से चूक चुके हैं, हालांकि फिर से एक बार ऑफ स्टिक से काफी बाहर थी गेंद। 2 बैक टू बैक वाइड्स, लगभग 5 रनअप खत्म किया है, 2 गेंदें फेंकी, हालांकि दोनों ऑफ स्टिक वाइड से बाहर फेंकी गई गेंद। और अगली मैच की अगर बात की जाए तो टॉस को जीतने के उपरांत पायरेट्स अबू धाबी ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय, हालांकि आज के दिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी उनके सलामी बल्लेबाज कर रहे हैं, दैट इज सानल एंड आई बिलीव द अदर वन इज सुनील। सानिल एंड अनिल, जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन्होंने की है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन। एनीवेज, यहाँ पे रिव्यू मांगा गया है, तीसरा वाइड कॉल था, हालांकि इस वाइड को रिव्यू कर रहे हैं रजत मुंडे विकेटों के पीछे बताते हुए कि दिस शुड बी रिव्यूड, और देखना पड़ेगा रिव्यू सक्सेसफुल होता है या नहीं। टीम के खाते में 7, अगर इस वाइड को मिलाया जाए तो 8, हालांकि एक गेंद भी दूसरे ओवर का पूरा नहीं हुआ है। लगभग 5-6 रनअप, मेरे ख्याल से रनअप में थोड़ी सी तकलीफ सामना कर रहे हैं यहाँ पे विवेक मोहन, केरला मूल के एक अद्भुत ऑलराउंडर भी है। ऑन पेपर अगर टीम्स की बात की जाए तो जस्ट बाय आउटलुक ऑफ इट आई बिलीव अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर्स आज के दिन मैदान पे एक महारथियों का संग्राम जिस प्रकार से उतारा है यहाँ पे इस मैदान पे काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय MRI टेनिस के तारे। रजत मुंडे, रिव्यू इज सक्सेसफुल, व्हाट दे आर सेइंग, सो इट्स अ नो वाइट। रिव्यू इज सक्सेसफुल दे आर सेइंग, यानी कि यहाँ पे एक गेंद पूरा हो चुका है। रन 7 पे ही रहेगा, 7 ऑन द बोर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.1 ओवर्स। डीप मिड विकेट पे बाउंड्री राइडर के रूप में मंसूर और एक केरला मूल के खिलाड़ी मिड विकेट के अंदर मिड ऑन पे खड़े हैं। विकी बोयर पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, मुनीर खड़े हैं पॉइंट पे, और उसी के साथ साथ फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार। ये गेंद खूबसूरत गेंद थी, उतनी अच्छी स्ट्रोक। दिस गाय इज एन टैलेंटेड यंग लैड, डैनियल आर्चर,
खूबसूरत हिट, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का छक्का, और इस छक्के के साथ साथ 13 टीम के खाते में 103 रनों का पीछा कर रहे हैं, यानी कि 90 और रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदों की बात की जाए 4.4 ओवर बाकी है, यानी कि 28 गेंदे 90 रन। हर ओवर 24 का आंकड़ा पार करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। टीम 20 का आंकड़ा यानी 20 रन प्रति ओवर बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। टीम यूनिफाइड ब्लूज काफी सारे बड़े टूर्नामेंट्स को अपने पक्ष में करने का अनुभव है इस टीम के पास, और इस बीच थोड़ी सी समालोचना और चिंता चल रही है। गेंद के इंतजार में है एम्पायर्स। इस बीच फिर से एक बार विवेक मोहन तैयार, डैनियल के लिए गेंद, खूबसूरत गेंद, उतनी खूबसूरत शॉट, व्हाट अ हिट, और एक सिक्सर यहां पे लगता हुआ। बैक टू बैक सिक्सर्स, डैनियल आर्चर, यू ब्यूटी। फिर से एक बार विवेक मोहन तैयार है। टीम के खाते में रन्स बन चुके हैं 19, 1.3 गेंदों के समाप्ति के बाद। विवेक के चौथी गेंद, इस बीच फिर से एक बार हिट बॉल हवा में, सलमान कोरे, ओ गेंद को जर्जी नहीं कर पाए, और थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी क्योंकि पहली बार पिंक एमआरआई टेनिस बॉल में क्रिकेट का आगाज किया है। ग्राउंड शॉट्स काफी अच्छी तरीके से फील्डर्स को नजर आएंगी, हालांकि बॉल जब फ्लड लाइट रोशनी से ऊपर जाएगा और नीचे आते हुए थोड़ी सी हलबलाहट होती है। इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी बीइंग सेट और योर माइंडसेट बीइंग सेट फॉर द कलर्स ऑफ द बॉल एंड द वे यू प्ले। यूजुअली टेनिस बॉल्स आर लिटिल लाइटर देन लेजर गुरु और एनी अदर एमआरआई टेनिस बॉल्स. That really makes the difference. This is all in this ball. It's always a batsman's game, but bowlers with good temperament can always keep the batsmen in check. It's always necessary to change your pace, change your variations. If the bowler with good variations will always be a good bowler when it is a 10x cricket ball. फिर से एक बार गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं विवेक मोहन. स्ट्राइक पे डैनियल आर्चर. इस पीछे गेंद, खूबसूरत हिट, बड़ा हिट. हालांकि बॉल हवा में, मुनीर गेंद के पीछे जरूर भागे, गेंद तक पहुंचे भी जरूर, हाथों पे गेंद आया भी, हालांकि बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर. ये चौका, 4 रन्स. जहां तक रनों का सवाल है, रन पे बढ़ोतरी हो रही है. 25 बन चुके हैं 1.4 गेंदों के समाप्ति के बाद. 1.5 गेंदे 1.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 11 balls 25 is what they have scored. They need somewhere around 77 runs to win this match from remaining 4.1 overs. फिर से एक बार विवेक मोहन, ये गेंद ऑफ स्टिक से काफी बाहर. अतिरिक्त का इशारा अंपायर द्वारा. एक और रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ. इसी प्रकार की बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना होगा. रनदारन पर रोक, यानी रनदारन अच्छी तरीके से बढ़ोतरी करनी होगी अगर मैच में अपना पकड़ बनाना है, इस मैच में जीत हासिल करना है टीम यूनिफाइड ब्लूज के लिए. मैच की शुरुआत में 21 रन पर ओवर चाहिए थे मैच को जीतने के लिए. यहाँ पे 24 का है रन रेट पर ओवर टू विन दिस मैच. What a hit! This is the second six of this over. Beautiful stroke from Daniel Archer. And the scoreboard says 32 for the loss of 1 wicket after the completion of 2 overs.
Mic testing. And for the attention of all the teams that have qualified for the quarterfinals, we have 8 teams qualified for the quarterfinals. There is a message for you. First semi-final match will be played tomorrow at 3:30 in the evening. For the benefit of everyone, it will be played at 3:30 for semi-final. Second semi-final will be after Maghrib prayer, and inshallah we'll begin the finals at 8 o'clock. So we can wind up the tournament quickly. So this is the message for everyone. Please keep in mind all the quarter finalists. First semi-final will be played at 3:30 in the evening. Hala, hala. दो ओवरों की समाप्ति के बाद 32 रन बने 1 विकेटों के नुकसान पे, और जहां तक रनों का सवाल है, और 71 रन बनाने हैं. 71 फ्रॉम 24 बॉल्स इज व्हाट रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच. और गेंदबाजी में बदलाव ने गेंदबाज के रूप में मेरे ख्याल से गेंदबाज बच्चूर आते हुए केरला मुल्क के, और एक ऑलराउंडर. बल्लेबाजी में बड़ी कमाल का प्रदर्शन नहीं है, हालांकि कल के दिन जबरदस्त बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, इस ऑलराउंडर ने, माफ कीजिएगा. पहले ओवर में विक्की बॉयर ने दिए सिर्फ 5, हालांकि इस ओवर में विवेक मोहन के एक ओवर में 27 रन यानी कि 27 रन झड़े थे मेरे ख्याल से बल्लेबाज डैनियल आर्चर. 3 चौके और 2 छक्के लगे इस ओवर में, जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई. इस बीच मंसूर गेंदबाजी पे आ रहे हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं. सिकंदर बट्टी, आई बिलीव इज फ्रॉम गुजरात बाय द नेम, बट ही इज अ चैंपियन प्लेयर एज वेल. I'm not sure from which state he belongs exactly. Just guessing that he is from Gujarat. Anyways, फिर से एक बार गेंदबाजी पे मंसूर. ये गेंद, what a hit! बॉल हवा में, फील्डर गेंद के करीब पहुंचने की कोशिश. कैच ड्रॉप. This is सिकंदर बट्टी. Let me tell you the way he bats is इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं. आड़े स्वीप्स और रिवर्स स्वीप्स, दिस इज स्पेशलिटी. रिवर्स पिक इनका काफ़ी अच्छा है. अगर बल्ले के बीचों बीच नहीं, हल्के से सही बल्ले पे गेंद लगेगी, इस बल्लेबाज का बल्ले से रन जरूर आएंगे. दिस काइंड ऑफ अ बैट्समैन इज अ वेरी रिस्की प्लेयर हु ऑलवेज एक्चुअली प्लेज स्क्वायर ऑफ द विकेट. विकेटों के पीछे या विकेटों के दाएं और बाएं तरफ ज़्यादा खेलते हैं सिकंदर बट्टी. खूबसूरत गेंद थी, स्लोअर वन फेंका था यहाँ पे मंसूर ने. फास्ट आर्म एक्शन के साथ चतुराई द्वारा फेंकी गई गेंद. जहाँ तक रनों का सवाल है, लेग बाय के रूप में अपने शरीर पे टकराने के उपरांत गेंद गई थर्ड मैन के दिशा में. फील्डर मौजूद थे, सिंगल लेने से रोक नहीं पाएंगे. एक और रनों का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ. मंसूर तैयार हो रहे हैं गेंद को फेंकने के लिए. मिड ऑन पे तैनात विक्की बॉयर आराम से लॉन्ग ऑन पे. विवेक मोहन लॉन्ग ऑफ पे. मुनीर खड़े हैं डीप मिड विकेट पे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए. एक्स्ट्रा कवर सलीम माइटी अंदर आ रहे हैं. थर्ड मैन और फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है. पॉइंट 35 गज के दायरे के अंदर, यानी कि डीप स्क्वायर लेग पे खड़े हैं सलमान फ्रॉम अलबिलादी. और इस बीच स्ट्रोक. दिस गाय प्लेज सम फैंटास्टिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स. Daniel Archer, if he gets this match close to Unified Blues, let me tell you, this will be the one performance to always remember. फिर से एक बार मंसूर तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए. ऑफ स्टिक से बाहर है, देखना होगा अंपायर का निर्णय. सही गेंद, गुड बॉल. टप्पा खाने के बाद मेरे ख्याल से अंदर की तरफ दिशा बदली. जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं मंसूर, वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस 10x बॉल इन दिस ग्राउंड. लेट मी टेल यू, bowlers who have 3-4 types of ball will always survive. वो टेम्परामेंट का बात होता है. इस बीच फिर से एक बार मंसूर तैयार डैनियल सामना करने के लिए. Oh, this was a ball. Just look the way he bowled this one. फास्ट था हम एक्शन के साथ. स्लोवर गेंद थी और बिल्कुल विकेटों के जड़ पे, क्रीज के जड़ पे.
और जब तक गेंद को समझते सिर्फ टैप करने का मौका था, हालांकि ऊपरी सिरा लगा और एक सिंगल। ओवर की आखिरी गेंद सामना करने के लिए सिकंदर बट्टी तैयार। 40 बन चुका है, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद है। 60 से ऊपर रन चाहिए। दे रीड समवेयर अराउंड 63। 19 गेंदों में 63 रन। इस बीच खूबसूरत हिट बॉल हवा में, फील्डर ये जिस प्रकार से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। आसान सा लॉलीपॉप कैच था, हाथ में आने के उपरांत नीचे गिरी है गेंद। निहाल इंटरनेशनल प्रीमियर लीग फिर से एक बार सबका स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, नजीब जी की अध्यक्षता में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। इस टूर्नामेंट के कन्वेनियर यानी कि संस्था ऑर्गेनाइजर के मुख्य स्थान इमरान ताहिर जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट को सजाया जाता है काडू क्रिकेट मैदान में, एक अद्भुत क्रिकेट मैदान। लेट मी टेल यू इट्स अ वंडरफुल क्रिकेट ग्राउंड। If you are a cricket lover and a cricket player, this is a place to be on weekends. Anyways, गेंदबाजी पे बदलाव अपने खाते की दूसरी ओवर लेके विकी बॉयर मुंबई से बिलोंग करते काफी तेज गेंदबाज है विकी। गेंद स्वीप किया, गेंद को आड़े बल्ले से मिड विकेट की दिशा में चौका। एक अच्छी शुरुआत मेरे ख्याल से जिस प्रकार से शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए रन्स की बात की जाए 18 गेंदे 62 रन। 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ 8 ಜಯಗಳಿಸಲು। और हर ओवर में लगभग 20-21 के 20.60 समथिंग वाज अ रिक्वायर्ड रेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस ओवर। पहली गेंद बट्टी चौका, दूसरी गेंद विकी बॉयर टू बट्टी। इस बार खूबसूरत गेंद, हालांकि खूबसूरत स्ट्रोक। फील्डर तैनात है स्वीपर के रूप में, स्वीपर एक्स्ट्रा पॉइंट स्वीपर खड़े हैं सलमान जो कि गुरबुरा से बिलोंग करते हैं। एक अद्भुत प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और गेंदबाज, अंडरम के बेताज बादशाहों में जो है कि सऊदी अरेबिया के क्रिकेट की अगर बात की जाए। फिर से एक बार विकी तैयार हो रहे हैं, काफी देर के बाद डैनियल आर्चर के हाथों में स्ट्राइक आ रही है। बाउंड्रीज और सिक्सर्स के तलाश में है डैनियल आर्चर। ओह काफी तेज गेंद, बड़ा बॉल, टप्पा खाने के बाद काफी ऊंचाई प्राप्त की गेंद और मेरे ख्याल से रिस्ट और कंधे दोनों का इस्तेमाल हुआ था। कुछ हद तक रजत बुंडे के सीधे शरीर पे गई गेंद, काफी तेज गई थी जिसके कारण जहां तक रनों का सवाल है बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल, स्कोर बढ़कर बनता हुआ 46 रन। जीत के लिए अभी भी 58 रनों का जरूरत। इस बीच चौथी गेंद चौथी ओवर की, लॉफ्टेड स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, बॉल हवा में। कुड यू बिलीव दिस? इट्स अ ड्रॉप, बट द थिंग व्हाट आई आस्क्ड, कुड यू बिलीव दिस इज इट वाज एन अक्रॉस लाइन शॉट। मेरे ख्याल से बल्ले का ऊपरी सिरा लगने के बाद लॉग ऑफ की दिशा में गेंद गई एंड आई बिलीव इट वाज अ गुड सेव एनीवेज। इट वाज एन इजी चांस पुट डाउन बाय मंसूर।
players are dropping catches today as and when the ball is coming in their hand. I seriously don't understand. There should be something. This is all about the mindset of the players. अमूमन येलो बॉल पे क्रिकेट खेला जाता है. इस बीच विकी फिर से एक बार तैयार, सिकंदर बट्टी सामना करने के लिए. बट्टी लॉफ्ट किया, खूबसूरत शॉट और ये सिक्सर. विल हैव टू वेट फॉर द डिसीजन. इट्स अ 4, सॉरी, इट्स अ चौका है. बॉल बाउंड्री लाइन के काफी अंदर गिरी है और इसी के साथ साथ 4 रनों का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ रन्स बढ़ चढ़कर बनते हुए 51 और भी 51 रनों का जरूरत है, 52 रनों का जरूरत है मैच को जीतने के लिए. 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಲು. This is Kanu Cricket Ground and this is Nial International Premier League Season 4. Last time when I came and watched this ground, I seriously enjoyed. It was a cask tournament and on the same day I thought if there's some good tournaments to be happening in Dammam, this should be the ground for MRI tennis, especially because the way the ground is laid out. इस बीच ये स्ट्रोक कलात्मय शैली की पंच है. बॉल हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है. फील्डर गेंद के लय और नीति दोनों समझ ही नहीं पा रहा है जब गेंद हवा में जाती है, which means the ball is taking a good deviation after getting into the air. काफी तेज हवा है, ये परेशानी का विषय बन सकता है कभी भी. और इसी के साथ साथ 2 और रनों का इजाफा टीम के खाते में हुआ है. स्कोर बढ़ चढ़कर बनता हुआ 53, which says 50 from 12 balls. $50 required from 2 overs. वेलकम बैक. सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में. भाई जफार बच पे आपको आंखों देखा हाल राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बारी बारी से सुनाते हुए. इस बीच गेंद में हसनैन आए, रियाद मुल्क के गेंदबाज है. दिस इज एन इंटरेस्टिंग बैटल. लेट मी टेल यू, दिस इज अबाउट माइंडसेट हियर. दिस बॉलर इज अ वेरी गुड पेसी बॉलर, but he's always a good bowler. Sometimes he leaks runs. This is the chance here for Unified Blues if they have to think of a comeback. This is Hussain getting ready to bowl his first ball of the 5th over. पहली गेंद हुसैन डैनियल आर्चर के लिए. खूबसूरत गेंद, जबरदस्त गेंद. शुरुआत काफी अच्छा है. Let me tell you, this is what required for Hussain when he starts his bowling. This guy is a very pacey bowler. Sometimes doesn't have length in line, but has a very good pace, which means 11 balls remaining. 11 गेंदों में 50 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए है. कम से कम 7 से 8 सिक्सर मारने होंगे इस मैच में वापस आने के लिए टीम यूनिफाइड ब्लूज के लिए. इस बीच स्ट्रोक कवच की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, हालांकि बल्ले का बारी सिरा लेते हुए पॉइंट की दिशा में गेंद गई. 1 रन छोर बदलेंगे बल्लेबाज. 10 गेंद बाकी है. 39 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए टीम यूनिफाइड ब्लूज. इस बीच फिर से एक बार हंसने तैयार बट्टी के लिए. गेंद लॉफ्ट करने की कोशिश थी, टप्पा खाने के बाद काफी तेज गेंद. काफी अच्छे लय में है हुसैन. Usually if he bowls first 2 balls and it's a good ball, then it is very difficult to get hold of this bowler. That's his temperament. It's all about his mindset. He's a very good bowler anyways, has a very good pace as well, but the way he has bowled his first 3 balls, let me tell you, it will be very difficult for any batsman to get hold of this bowler anymore because he is bowling at a very good rhythm right now. फिर से एक बार हसनैन डैनियल के लिए गेंद. खूबसूरत गेंद थी, उतनी अच्छी तरीके से स्ट्रोक को खेला सलमान कोडी.
जब तक गेंद को रोकते हैं छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज, यानी कि अच्छी नबी तुली गेंदबाजी। 8 balls of 47 is what required, which means 8 गेंदों में 8 छक्कों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार ये गेंद, सिकंदर बट्टी, खूबसूरत हिट। ये सिक्सर और सिक्सर के साथ साथ 6 रनों का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ 47 was required। 27 रन चाहिए थे, यहां पे इस चक्कर के बाद 41 रन चाहिए। 41 is what required। 7 balls 41, which means they'll have to hit all balls for 6 unless there's wide and no ball here to win this match and to tie the match. And what I believe is they need to hit 6 sixes and a boundary. By the looks of it, it's an impossible. It's not impossible. It's a very tough target where you say it's a possibility is 0.01%. Anyways, oh, it's a full toss. It's a no ball. It's a no ball. But anyways, the ball didn't travel outside the boundary. There was a chance for this batsman. मौका था यहाँ पे। लो फुल टॉस गेंद थी, कमरों के ऊपर थी। अगर ये गेंद बल्ले पे पूरी तरीके से आती, कुछ हद तक दबाव में आ सकते थे गेंदबाज हुसैन। हालांकि यहाँ पे बाल बाल बचे। यूजुअली सिकंदर बट्टी इस प्रकार के गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। यहाँ पे टाइम नहीं कर पाए गेंद को, काफी तेज गेंद थी, फ्री हिट गेंद। ओवर की आखिरी गेंद और फ्री हिट गेंद। इस बीच फिर से एक बार खूबसूरत शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन की दिशा में, चौका। खला है इस बल्लेबाज के पास, डैनियल आर्चर इज हिज नेम। They need 35 from 6 balls. Again, the equation says the same. 6 गेंदों में 6 छक्के या 6 गेंदों में 5 छक्का और 1 चौका. It will be a tie. The people have followed softball, tennis, cricket from state of Karnataka. One name which will always strike in recent years is none other than this bowler who has the ball in his hand. Salim Mighty, one of the best batsmen ever. और इस बीच पहली गेंद ऑफ स्टिक से काफी बाहर, फुल टॉस गेंद भी है। देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या आता है। अतिरिक्त वाइड, नो बॉल की मांग जरूर कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, और इसी के साथ साथ अतिरिक्त टीम के खाते में जुड़ते हुए। Is it a okay? It's a review from the side of batting for the no ball, I believe, right? Batsman review for the no ball. Okay, right. It's a no ball. It's over waist height, says the third umpire here. आसिफ चोगले बता रहे हैं कि ये नो बॉल है, ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस।
जिसके कारण अतिरिक्त के रूप में रन जरूर आएगा। हालांकि फ्री हिट यहाँ पे सलीम बाइटी के हाथों से गेंद जारी है, लॉफ्ट करने की कोशिश, सिर्फ एक रन। मेरे ख्याल से यहाँ से आगे अगर नो बॉल्स और वाइड्स नहीं गिरते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच को जीत सकती है अल बिलादी सुपर स्ट्राइकर्स। बट लेट मी टेल यू द वे दीस पीपल हैव बैटेड एंड दे ब्रॉट द स्कोर अप टू 71 रन्स नाउ विद 5 बॉल्स रिमेनिंग इन दिस ओवर। आखिरी 2 ओवर काफी महंगे साबित हुए यूनिफाइड ब्लूज के लिए। रुजैक के ओवर में लगभग 30 रन जो कि गए थे और उसके उपरांत उससे पहले जिस ओवर में डैनियल ने 17 रन दिए थे, यानी कि आखिरी 2 ओवर में लगभग 50 रन जो कि दिए यूनिफाइड ब्लू, वो यहाँ पे उनको खतरा बनता हुआ। और इसी के साथ साथ ये विक आउट, इट्स अ सिंगल। एनीवेज देयर इज अ चेंज ऑफ बैट, आई बिलीव they've asked for the change of bat. Batsman Sikandar Bhatti looks to have broken his bat right now. Fishing ball, Salim Bhatti again, lofted shot. बॉल हवा में नहीं जा रही है, जमीन के सारे देखना होगा सिंगल। और इस सिंगल के साथ साथ ये जीत के अंतर को कम कर सकती है, हार के अंतर को कम कर सकती है, लेकिन जीत नहीं दिलाएगी यहाँ पे यूनिफाइड ब्लूज के लिए। एंड आई एम जस्ट लुकिंग हियर इन द पॉइंट्स टेबल एंड द वे द क्वार्टर फाइनल्स विल पैन अप। आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट अ हिट, खूबसूरत हिट, बॉल बाउंड्री लाइन की दिशा में और ये चौका। If somebody from the organizers can let me know what would be the quarterfinals, as per my guess, if I'm not wrong. The first quarterfinals is Pirates Abu Dhabi and Kanu. Pirates Abu Dhabi winning the toss, selected to field first. Looks to be a champions team, travel all the way from Abu Dhabi. Second will be Cloud 7 versus Kask, if I'm not wrong. And the third match, I believe, will be that is A1, which is A1 in this group is Super Strikers, and B2 will be OGC Sports, if I'm not wrong. And then you have A2, that is Unified Blues playing against B1, that is Alliance Doha Rockers, and that will be the match to watch out for, because let me tell you, the man who was managing Unified Blues for such a long time, Altaf, is on the opposite side, and Altaf versus Ansaf is confirmed in this tournament. To tell nothing away, this is just to give a light reminder, as there was a cask tournament. We have seen both running into the ground to celebrate a tournament, to celebrate a win against the team.